Hello friends, welcome to Bankers platform. Today we have come again with new set of questions for JIB exam and our subject is PPB. So friends, today we will discuss memory recall questions and these questions are very important because these questions are many times repeated in the exams. So you should watch the full video and try to remember these all the questions so that you can perform in the exam. So before starting friends, we will discuss few things. Like in JIB we have this module A, Indian financial system, module B, function of banks, module C, banking technology, module D, support service marketing, and module E, ethics in banking, banks and financial institution. So in this section we have covered first two module, Indian financial system and function of banks. तो फ्रेंड्स हम इन दो टॉपिक्स के जो मेमोरी रिकॉर्ड क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे. जैसा कि आपको पता है कि दिस एग्जाम इज ऑफ 100 मार्क्स और यहाँ पे हमारे पास 5 मॉड्यूल्स हैं एंड इन दिस 5 मॉड्यूल यू कैन सी कि जो हमारे जो लास्ट के जो दो मॉड्यूल्स हैं इनसे 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक मॉड्यूल 4 एंड 5. इन दो से 10 मार्क्स के क्वेश्चन एंड रेस्ट यू हैव 80 मार्क्स. आउट ऑफ दैट क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम मॉड्यूल ए, बी एंड सी. सो अगर आप मॉड्यूल ए, बी एंड सी प्रॉपरली कर लेते हैं देन यू कैन easily get through the exam because 80 marks going to come from this. And module D and E is also important as compared to previous, but mostly questions are asked from first three modules. So here we will discuss first two modules memory recall questions. And if you watch this video, your 20 marks are done. Your 20 marks are confirmed from this video. So let's start with our first question. So our first question is, there are certain financial instruments whose prices are derived from the price of the underlying currency or interest rate or stocks, etc. These are known as, our options are securitization, derivatives, leasing, factoring, venture capital funding. So what we call this? So the correct answer is B, डेरिवेटिव. दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव. डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी जो अपनी कोई प्राइस नहीं होती है, बट जो उनके जो प्राइस है वो डिराइव होती है किसी करेंसी से, किसी इंटरेस्ट रेट से या स्टॉक से या कोई भी अंडरलाइन एसेट जो है. ओके, so this is very important question and this question is asked in the exam, in previous exam. And if you complete this derivatives topic, here you have more things like bonds, share, debentures. So derivatives, so here 1 mark is confirmed. So let's see next question. Question number 2. Payments, payment banks, payment banks will initially be restricted to hold a maximum balance of rupees dash per individual customer. मीन्स कि जो पेमेंट बैंक्स है वो पर इंडिविजुअल कस्टमर कितने रुपीस डिपॉजिट ले सकते हैं. अगर ऑप्शंस आर 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख. एंड लेट सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर इज 1 लाख रुपीज. जितने भी पेमेंट बैंक्स है वो 1 लाख रुपीज तक का डिपॉजिट ले सकते हैं. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन आरबीआई ऑफर्स लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी टू बैंक्स, दिस लीड्स टू A, improvement in the liquidity position of banks, increase in their capacity to lend, increase in their deposits, improvement in income of banks by more lending. So our options are A to D all, B and C, B and D, C and D. So let's see what is the correct answer. Correct answer is C. C is the correct answer. Because when RBI offers liquidity adjustment facility, LAF, so what happens? LAF की वजह से जो इंक्रीज इन द कैपेसिटी टू लैंड, जो बैंक की लैंडिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है और उसके साथ साथ इम्प्रूवमेंट इन इनकम ऑफ बैंक्स बाय मोर लैंडिंग, कि जब बैंक ज़्यादा लैंड करेगा तो उसकी जो इनकम है वो भी इम्प्रूव होगी. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. The
Credit institutions are required to update the credit information on a regular basis, at least on basis to provide the information to credit information companies. So जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको जो है ये डाटा कब कितने पीरियड में प्रोवाइड करना है. अवर ऑप्शंस आर मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मंथली. जितने भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, सो हमें जो है इन इंस्टीट्यूशंस को जो है डाटा जो है क्रेडिट का जो डाटा है वो मंथली बेसिस पे क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को प्रोवाइड करना है. सो क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस because CIBIL, CIBIL, CRISIL is there. So these credit information companies are also very important topic. और फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि जो जेआईबी का एग्ज़ाम है दैट इज़ नॉट ओनली एग्ज़ाम, इट ऑल्सो हेल्प्स टू इन्हांस योर नॉलेज. तो जो एग्जामिनर है वो उस हिसाब से क्वेश्चन सेट करते हैं जो आपकी प्रैक्टिकल बैंकिंग में भी वो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, सो दैट यू कैन हैव अ गुड एक्सपोजर वाइल स्टडिंग. जब आप स्टडी कर रहे हैं और उसके बाद जो आपका एक्सपोजर क्रिएट होता है दैट विल बी हेल्पफुल फॉर बैंक्स ऑल्सो. ड्यू टू दैट ओनली द बैंक्स आर गिविंग द इंक्रीमेंट. अगर आप जेआईबी पास करें, बैंक इज गिविंग इंक्रीमेंट. वाई? बिकॉज बैंक knows that if you will clear this exam, your exposure will increase. You will have a lot knowledge than that candidate who has not completed the exam. और अगर आप एग्ज़ाम जेआईबी का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर करते हैं, then you know the monetary benefit is there. Other than that, if you are appearing in promotion exam, you will be given some extra marks for this GIB. So you should prepare this exam very well and clear your GIB exam, and in next you can clear your CIB exam also. So let's move to question number 5. Which of the following category of securities are not required to be marked to market by banks? So our options are held till maturity, available for sale, held for trading, none of the above. So let's see what is the correct answer. The correct answer is held till maturity. जितने भी हमारी जो सिक्योरिटीज हैं जो हेल्ड टिल मेच्योरिटी के कैटेगरी में आती है HTM में, तो उन चीज़ों, ये सिक्योरिटीज जो हैं ये मार्क टू मार्केट नहीं होती हैं, ये मार्केट से लिंक नहीं होती हैं. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. HTM, AFS. तो यहाँ से फ्रेंड्स एक नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है रिलेटेड टू सिक्योरिटीज. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. The letter C in the rating model, CAMELS, CAMELS, being used by RBI for rating public sector bank represent. तो जो C है, CAMELS का जो C है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? Our options are capital fund, capital adequacy, capital contributed to subsidies, B and C. So let's see what is the correct answer. Correct answer is capital adequacy. So जो कैमल्स का सी है वो है कैपिटल एडिकेसी. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज करेक्ट? Certificate of deposit is a negotiable market instrument. CD is issued in demat form or as a usance promissory note. CD is issued at a discount to face value. So our options are 1 to 3 all, 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only. So let's see what is the correct answer. Correct answer of this question is A. A to 3 all. जो A to 3 ऑल मतलब सॉरी 1 to 3 ऑल, ये जो जितनी भी कंडीशंस हैं ये सभी जो हैं वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के फीचर्स हैं. फ्रेंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, बॉन्ड्स, इन सब के ऊपर जितनी भी चीज़ें हमारी बुक्स में हैं, IIBF की जो बुक है मैकमिलियन की, यू शुड गो थ्रू दैट पॉइंट वाइज पॉइंट, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे आपको एक पॉइंट दे दिया जाएगा लाइक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. अब वहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उसमें एक ऐसा ऑप्शन ऐड कर दिया जाएगा जो उसका पार्ट नहीं होगा. एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे कैरी मिनिमम यू कैन से 1 to 2 मार्क्स. अगर इस टाइप के आपको आते हैं तो 1 to 2 मार्क्स में आपको ये पूछा जा सकता है. सो 1 to 2 मार्क्स इज
done from this topic only. Certificate of deposit, commercial paper. So you should prepare this very well so that you can score, you can make your marks confirm for the exam. Let's see question number 8. Any change in date, amount और name of the pay is called. अगर हम कोई भी चेंज करते हैं डेट में, अमाउंट में या नेम ऑफ द पे किसी भी चेक पे, तो उसे हम क्या कहते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज मटेरियल ऑल्ट्रेशन. उसे हम मटेरियल ऑल्ट्रेशन कहते हैं. दिस इज द करेक्ट आंसर. So let's see next question. Question number 9. Payment cannot be made in case of death, insolvency, insanity of customer, or insolvency of partner, or firm, or liquidation of company. Stop payment, receipt of garnishee or attachment order, post dated check and stale check. Which of the above mentioned option is incorrect? So हमें बताना है कि किस कंडीशन में पेमेंट नहीं की जाएगी एंड विच इज इनकरेक्ट. सो लेट्स सी अवर ऑप्शंस. Our options are A and B, D and E, none of the above. So फ्रेंड्स यहाँ पे क्या पूछा गया? पेमेंट कैन नॉट बी मेड. डेथ के केस में पेमेंट हम नहीं करेंगे, इंसॉल्वेंसी में भी नहीं करेंगे, इंसेनिटी ऑफ कस्टमर, अगर कोई कस्टमर है वो इंसेन हो जाए, लाइक वो पागल हो जाए, तो उस केस में भी हम ये चीज़ें नहीं करेंगे, और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर ऑफ और फर्म और लिक्विडेशन ऑफ कंपनी. अगर कोई फर्म जो है इंसॉल्वेंट हो जाती है या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है और अगर कोई कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है, उस केस में भी हम पेमेंट नहीं करेंगे. एंड नेक्स्ट इज स्टॉप पेमेंट. दिस इज ऑलरेडी अंडरस्टूड. दिस वी आर डूइंग इन अवर डे टू डे बैंकिंग कि स्टॉप पेमेंट है तो हम पेमेंट नहीं करेंगे. रिसिप्ट ऑफ गार्निशी और अटैचमेंट ऑर्डर. तो अगर गार्निशी या अटैचमेंट ऑर्डर आया है किसी अकाउंट में, तो उस केस में भी हम पेमेंट नहीं करेंगे. एंड पोस्ट डेटेड चेक. पोस्ट डेटेड चेक की भी पेमेंट नहीं होगी, इट विल बी ऑन द डेट ऑफ द चेक. और स्टेल चेक. स्टेल चेक मीन्स कि आज अगर 29 नवंबर है और अगर हमारे पास चेक आता है 3 महीने पुराना, लाइक 29 अप्रैल का चेक है, दैट इज कॉल्ड स्टेल चेक. एज यू नो, चेक जो है वो 3 मंथ्स के लिए वैलिड होते हैं, एंड if that is a stale check, we are not going to make the payment. So the correct answer will be none of the above, because these all are correct statement. तो इसका आंसर होगा none of the above. This will be the correct answer. So friends, let's move to next question. Question number 10. As per dash, a bank cannot grant loans or advances on the security of its own share. सो किस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो है बैंक लोन नहीं दे सकता है अपने शेयर्स के अगेंस्ट? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेक्शन 20 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. सो जो सेक्शन 20 है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, अकॉर्डिंग टू दैट अकॉर्डिंग टू दैट banks cannot grant loans or advances on the security of its own share. Let's see question number 11. RBI can impose penalty for various kind of violation as per which act? As you know, अगर बैंक जो है कोई भी वायलेशन करता है आरबीआई की गाइडलाइन का, एंड आरबीआई जो है पेनल्टी लगा सकता है किसी भी बैंक पे, तो वो किस सेक्शन के अकॉर्डिंग है? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेक्शन 47A of Banking Regulation Act 1949. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइक जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू डे टू डे बैंकिंग ऑल्सो, लाइक इम्पोजिंग ऑफ पेनल्टी की हम न्यूज़ सुनते रहते हैं. तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्क इन प्रीवियस एग्जाम. सो वाई दिस इज आस्क? अगर ऐसी कोई एक्टिविटी हो रही है, सो ए बैंकर शुड नो कि ऐसे कौन से सेक्शंस हैं, ऐसे कौन से लॉज हैं जिसके अकॉर्डिंग दीज एक्टिविटीज आर हैपनिंग. सो यहाँ पे इम्पोजिंग पेनल्टी, ये एक बहुत ही कॉमन है जो हम न्यूज़ में सुनते हैं कि कभी किसी बैंक पे भी पेनल्टी इम्पोज की गई है केवाईसी गाइडलाइन की वायलेशन से या मार्जिन नहीं रखने की वायलेशन से. सो वो किस एक्ट के थ्रू है? दैट इज सेक्शन 47A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. सो यू शुड लर्न दोज टाइप ऑफ थिंग्स विच आर ऑल्सो गोइंग अराउंड यू, अराउंड यू,
जितने भी हमारे आसपास की चीज़ों में जो बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो लेट्स सी। और ये जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, यहाँ से 2 to 3 मार्क्स, अगर आपने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के जितनी भी सेक्शन है, मेन सेक्शंस को अगर प्रिपेयर कर लिया, सो योर 2 to 3 मार्क्स आर कंफर्म। So now let's see. In collection, in collection of check and standing instruction, what is banker and customer relationship? Banker customer relationship, friends, banker customer relationship is very very important topic, और इससे एक नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। दे विल गिव यू वन सिचुएशन और उसमें आपको वो पूछा जाएगा कि यहाँ पे बैंकर और कस्टमर का क्या रिलेशन है। सो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ चेक, हमारे प्रीवियस वीडियो, जो हमारा प्रीवियस वीडियो था पीपीबी के ऊपर, उसमें हमने बैंकर एंड कस्टमर रिलेशनशिप के ऊपर डिस्कशन भी की थी। सो आई होप सो कि आपने वो सब पढ़ लिया है। सो यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एजेंट एंड प्रिंसिपल। एजेंट एंड प्रिंसिपल, यहाँ पे जो रिलेशन है कलेक्शन ऑफ चेक्स में, वो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन में बैंकर कस्टमर का, दैट इज ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल। Okay, let's move to question number 13. As per section dash, a bank is under obligation to pay checks issued by customer provided there is a sufficient balance in the account, the check is otherwise in order, the funds are properly applicable such that not attached by garnishee order or attachment order. If a bank dishonor a check drawn by a customer despite satisfaction of aforesaid condition, bank will be liable to draw and not to pay or true honor for damages suffered by him. सो यहाँ पे आपको बताना है कि एज पर विच सेक्शन जो बैंक है वो ऑब्लाइज्ड है चेक्स की पेमेंट करने के लिए। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेक्शन 31 ऑफ सेक्शन 31 ऑफ एनआई एक्ट। सो सेक्शन 31 ऑफ एनआई एक्ट के जो है, बैंक जो है वो ऑब्लाइज होता है, देयर इज अ बैंक इज अंडर ऑब्लिगेशन टू पे चेक्स इशूड बाय कस्टमर, और उसमें ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। सो यहाँ पे भी फ्रेंड्स दिस क्वेश्चन हैज़ कम इन प्रीवियस एग्जाम, और इस तरह के जो है केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस जो है 1 से 2 मार्क में आपको पूछे जाते हैं। तो 1 to 2 मार्क इज कंफर्म। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जितने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के जितने भी सेक्शंस हैं जो मेनली यूज होते हैं बैंक्स में, एंड विच आर वेरी कॉमनली यूज, तो उन्हें आप अच्छी तरह तैयार कर लीजिए ताकि आपके 1 से 2 मार्क्स सिक्योर हो जाए। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। Dash is passed by the board of directors authorizing opening and operation of the account by named officials of the company. A copy of this should be attested by its company secretary or chairman of the meeting at which resolution was passed. तो इस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं? So the correct answer of this question is resolution. Resolution of board of डायरेक्टर्स। सो रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है जो पास किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, जो ऑथराइज करते हैं ओपनिंग ऑफ अकाउंट एंड ऑपरेशंस इन द अकाउंट। ओके, सो दिस इज इन दिस वे मैनी थिंग्स कैन बी आस्क फ्रॉम कंपनीज, लाइक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एंड व्हाट इज कॉल्ड द डिफरेंट टाइप ऑफ लॉज रिलेटिंग टू कंपनीज एक्ट, वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो यू शुड प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। केवाईसी गाइडलाइंस। सो फ्रेंड्स, केवाईसी गाइडलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज केवाईसी आप देखते होंगे हमारे बैंक्स में भी हर बार सर्कुलर्स इशू होते हैं रिलेटेड टू केवाईसी, और आरबीआई भी कंटिन्यूसली केवाईसी गाइडलाइन के ऊपर बहुत सी पेनल्टी लगा चुका है बैंक्स के ऊपर। सो बैंक्स आर वेरी मच अवेयर दैट केवाईसी गाइडलाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बैंक। सो इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ द लेटेस्ट गाइडलाइंस ऑल्सो। अगर कोई लेटेस्ट गाइडलाइन है, अगर कोई लेटेस्ट चेंजेस हैं केवाईसी गाइडलाइन में, यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट।
And let's see this question what is about. KYC guidelines have been issued by RBI under dash. तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको बताना है कि किस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है केवाईसी गाइडलाइंस होती हैं. एंड रूल 7 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स कीपिंग इन व्यू द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. ऑब्जेक्टिव जो है क्या है केवाईसी गाइडलाइन के. द ऑब्जेक्टिव ऑफ केवाईसी गाइडलाइन इज टू इंश्योर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड combating terrorism, finance and risk management. एंड वन टाइम फ्रेंड्स क्वेश्चन हैज कम फ्रॉम दिस आल्सो कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है केवाईसी गाइडलाइन के. तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है. फर्स्ट इज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड कॉम्बैटिंग टेररिज्म फाइनेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट. नेक्स्ट, बैंक शुड फ्रेम देयर केवाईसी पॉलिसीज इनकॉर्पोरेटिंग द फॉलोइंग फोर एलिमेंट. और केवाईसी की जो पॉलिसी है उसके जो चार एलिमेंट्स हैं वो हैं कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, monitoring of transactions and रिस्क मैनेजमेंट. सो वन टाइम फ्रेंड्स क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा चुका है कि कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी के जो मेन फोर एलिमेंट्स हैं वो क्या है. इन दैट लाइक फोर की एलिमेंट्स जो केवाईसी के हैं वो क्या है. फर्स्ट इज कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एंड रिस्क मैनेजमेंट. Our next is bank to obtain identity and address of the customer and do proper verification at the time of opening the account. Proof of address not required if address in account opening form is same as in proof of identity. Okay. Customers should be categorized into low, medium, and high risk. High risk customer include political exposed person, high net worth individual, NGO, trust. अब इस तरह का भी क्वेश्चन फ्रेंड्स कई बार पूछा जा चुका है वेयर दे विल गिव हाई रिस्क कस्टमर इंक्लूड. वहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे पेंशनर, ओके, पॉलिटिकली एक्सपोज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हाई रिस्क कस्टमर. तो उसमें आपको इसके बीच में एक ऐसा पॉइंट दे दिया जाएगा जो आपको कंफ्यूज करेगा. क्वेश्चंस विल बी ऑफ द नेचर विच विल कंफ्यूज यू, सो यू हैव टू गिव द आंसर्स वेरी अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट एंड देन ऑनली, नॉट इन एनी हरी. ओके. सो लो रिस्क कस्टमर, जो लो रिस्क है वो कौन से होते हैं. सैलरीड, पेंशनर, नो फ्रिल अकाउंट एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. एंड रिस्क रिव्यू, रिस्क रिव्यू जो है ऑफ कस्टमर. बैंक शुड रिव्यू द रिस्क प्रोफाइल ऑफ कस्टमर एटलीस्ट वंस इन 6 मंथ. ये क्वेश्चन भी आ सकता है फ्रेंड कि जो रिस्क रिव्यू है वो कब करना चाहिए. सो द आवर मेन क्वेश्चन इज कि जो केवाईसी गाइडलाइंस हैं जो आरबीआई इशू करता है वो किस एक्ट के अंडर करता है. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज as per section 35A of Banking Regulation Act 1949. So as per section 35A जो है बैंक जो है गाइडलाइन इशू करता है फॉर केवाईसी. So this is our 15th question answer. Let's move to next question. So इसमें फ्रेंड्स कुछ और भी पॉइंट्स थे लाइक रिस्क रिव्यू ऑफ कस्टमर. बैंक शुड रिव्यू द रिस्क ऑफ द कस्टमर एटलीस्ट वंस. ये हम कर चुके हैं. इंट्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी फॉर ओपनिंग अकाउंट. अर्लियर इट वाज नेसेसरी बट नाउ इंट्रोडक्शन इज नॉट मैंडेटरी. It can be taken, and if it is not there it's okay. And Narega card and Aadhaar card can be accepted as a proof of identity. Now let's see question number 16. Small accounts. This is related to small accounts. और फ्रेंड्स स्मॉल अकाउंट से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं एंड दिस स्मॉल अकाउंट क्वेश्चन इज आल्सो आस्क्ड इन अवर अकाउंट्स एग्जाम. जैसे कि अकाउंट्स एग्जाम का जो मॉड्यूल 4 है दैट इज नथिंग बट इट इज ए कंप्लीट पार्ट ऑफ आवर पीपीबी एग्जाम. अगर आपका पीपीबी सब्जेक्ट क्लियर है प्रॉपरली देन यू कैन इजीली स्कोर 20 to 25 marks in accounts exam without studying also because you have already studied PPB properly. So your fourth module of accounts is clear. और वहाँ पे ये क्वेश्चन भी आ चुका है स्मॉल अकाउंट से. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2016 आल्सो, 17 आल्सो एंड 18. इन तीनों ईयर्स में जो है स्मॉल अकाउंट से क्वेश्चन आया है. सो लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन हियर. एज पर PMLA Prevention of Money Laundering Act guidelines, a small account
is one in which balance will not be more than rupees dash. Okay, credits in a financial year not more than dash, withdrawals or transfers in a month not more than dash rupees. These accounts can be opened with self-attested photo and self-attested address. No minimum balance but maximum withdrawal in a month dash times. तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपके चार क्वेश्चंस बनते हैं, और ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपको 1 से 2 मार्क्स देकर जाता है. सो 1 to 2 marks is your confirm if you can answer this question properly. So फर्स्ट जो है बैलेंस, स्मॉल अकाउंट में जो है बैलेंस कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. सो द करेक्ट आंसर इज 50,000. 50,000 से ज़्यादा बैलेंस नहीं होना चाहिए. ओके, अब नेक्स्ट इज क्रेडिट इन ए फाइनेंशियल ईयर. एक फाइनेंशियल ईयर में स्मॉल अकाउंट में कितने से ज़्यादा का क्रेडिट नहीं होना चाहिए, एंड दैट इज 1 लाख रुपीज़. 1 लाख से ज़्यादा का क्रेडिट नहीं होना चाहिए. ओके, एंड विड्रॉल्स, जो विड्रॉल्स है वो एक महीने में कितने के होने चाहिए, लाइक व्हाट इज द अमाउंट, दैट इज रुपीज 10,000. जितने भी स्मॉल अकाउंट्स हैं उनमें एक मंथ में वो सिर्फ 10,000 ही विड्रॉ कर सकते हैं. एंड हाउ मैनी मैक्सिमम विड्रॉल्स इन ए मंथ, सो दैट इज 4 टाइम्स. 4 टाइम्स जो हैं विड्रॉल्स अलाउड हैं, नॉट मोर देन दैट. अगर वो, अगर एक पर्सन जो है जिसका स्मॉल अकाउंट है वो एक महीने में 4 बार 1,000 रुपीज विड्रॉ कर लेता है, दैट मीन्स ही कैन नॉट विड्रॉ मोर. बट उसकी जो लिमिट है 10,000 है, बट उसने ऑलरेडी 4 टाइम्स जो है अपने कर लिए. ओके, सो 10,000 से ज़्यादा हम उन्हें दे नहीं सकते स्मॉल अकाउंट वालों को. एंड उनका जो बैलेंस है, क्रेडिट्स जो है एक साल में 1 लाख से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए. सो दीज आर द वेरी important points related to small account which is asked many times in the examination. So let's move to next question, question number 17. Banks should send report of all cash transaction, deposit or withdrawal of more than rupees dash, cash transaction report CTR, okay, to Financial Intelligence Unit India within dash days from the dose of the month to which it pertains. तो एक महीने में जो है जितनी भी है कितने से ज़्यादा की जो ट्रांजैक्शन हुई है जो हमें CTR में रिपोर्ट करनी है और कितने दिनों के अंदर करनी है. सो हेयर व्हाट इज द अमाउंट, दैट इज रुपीज 10 लाख. 10 लाख रुपीज से जितनी भी ज़्यादा की ट्रांजेक्शन है 10 लाख से ऊपर की, उसे हमें CTR में रिपोर्ट करना होता है. किसे? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को. ओके, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट एंड इंडिया, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया. विद इन हाउ मैनी डेज, कितने दिन के अंदर करना है, दैट इज विद इन 15 days. ओके, सो विद इन 15 days यू हैव टू डू दिस. यहाँ पे फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और आपको STR से, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट से भी आ सकता है. एंड फॉर सस्पिशियस ट्रांजेक्शन दैट इज टाइम इज 7 days. 7 दिनों के अंदर हमें रिपोर्ट करना होता है. और नेक्स्ट 18th क्वेश्चन इज related to term deposit. Minimum period as per RBI is dash days, maximum period as per RBI is dash years. तो कितने मिनिमम जो है हम टर्म डिपॉजिट कितने दिनों के लिए बना सकते हैं और मैक्सिमम. सो मिनिमम इज 7 days and the maximum is 10 years. So this question has also come in the exam. So minimum period is 7 days and maximum period is 10 years. So this is related to term deposit. Now let's move to next question number 19. So question number 19 is dash are non-profit institutions established with the support of state government and central governments. The objective is to generate self-employment in rural areas through training for capacity building and by facilitating settlement in vocations. 60% of candidates trained in dash belong to below poverty line BPL category.
Each dash offers 25 to 30 skill development programs in a financial year in 60 avenues or trades approved by Ministry of Rural Development under agriculture product process and journal programs through uniform standardized curriculum. Product Entrepreneurship Development Program (EDP), such as tailoring, candle making, costume, jewelry, bamboo and cane craft, papad, pickle and masala making, jute product, and process-oriented activities such as motor vehicle repair and services, mobile repair and services, masonry and bar bending, beauty parlor management have been popular among the candidates. Training on agriculture activities such as goat rearing, sheep rearing, piggery, mushroom cultivation are well received by the candidate. So the duration of the program ranges from 10 days, 80 hours to 30 days, 200 hours. Training programs are usually decided by the institute based on the local prevalent traits and potential demand for the product or services. तो ये क्या है, ऐसी इस नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन को हम क्या कहते हैं? सो दैट नॉन प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड आर रीसेटी, दैट इज रीसेटीज, रीसेटीज। सो इस इंस्टीट्यूशन को हम रीसेटी कहते हैं, एंड दैट इज रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, रूरल रूरल self employment training institutes हैं. So this will be coming in this and this fill up. Okay, in this dash this is going to come, that is reseti. So friend, reseti is very important. Okay, this is R seti. So the full form of this is Rural Self Employment Training Institute. Okay, RSETI. So this is a topic from JIB only. If you will go through the syllabus, this topic is there. So you should read about this RSETI, and questions are asked from this topic also. And with that, you can also go through like government schemes like PMEGP, Prime Minister Employment Generation Scheme. Questions are asked from there also. So if you prepare these government sponsor scheme topic, so from there also you will be getting good questions. Like here you can get 2 to 3 marks from government sponsored scheme. 2 to 3 marks are confirmed. Like RSETs are there, and other than the PMEGP, then you can say Prime Minister Mudra Yojana, Stand Up India. So these are the government sponsored scheme. तो वहां से भी फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, and you should prepare that. Okay, let's see question number 20. So our question number 20 is related to MSME. So as you know, new definition of MSME is there. So there have been a fear among the MSME that if they grow out the threshold limit, they will lose the benefit they have been enjoying. The fear has been killing their urge to grow in terms of size and turnover. Taking this into consideration, the finance minister changed the definition of MSME in their favor. So in order to redefine the MSME, government has taken following measures. So what are that measures? Increased investment limit, introduced additional criteria of turnover, eliminated difference between manufacturing and service sector, amendment to law will be made. Okay, so अब जो नई definition है, अकॉर्डिंग टू दैट आपको बताना है फ्रेंड, दिस इज अ क्वेश्चन कि माइक्रो यूनिट्स में कितने तक की इन्वेस्टमेंट और कितना टर्नओवर होना चाहिए, स्मॉल यूनिट्स में कितना होना चाहिए, एंड मीडियम में कितना होना चाहिए. सो यू हैव टू गिव द आंसर फॉर फर्स्ट माइक्रो. माइक्रो में जो इन्वेस्टमेंट है वो अप टू 1 करोड़ तक होनी चाहिए, एंड द टर्नओवर इज शुड बी बिलो 5 करोड़. 5 करोड़ से नीचे टर्नओवर होना चाहिए. इन द सेम केस इफ यू सी स्मॉल यूनिट्स, स्मॉल यूनिट्स जो हैं उनमें जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 करोड़ तक होनी चाहिए, एंड टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ तक होना चाहिए, बिलो 50 करोड़. एंड इन मीडियम
the investment is up to 50 crore and turnover is up to 250 crore. So this question can come in the exam. And priority sector topic is very important, क्योंकि फ्रेंड्स priority sector से आपको 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एमएसएमई गाइडलाइन। और अभी एमएसएमई की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग एमएसएमई में लाइक प्रायोरिटी सेक्टर लाइक हाउ मच वी कैन लैंड टू एग्रीकल्चर सेक्टर, माइक्रो एंड स्मॉल यूनिट्स एंड टू मार्जिनल फार्मर्स, कितना हम लैंड कर सकते हैं। तो दीज ऑल फिगर्स यू शुड memorize this figure because 3 to 4 marks question will come from priority sector. And priority sector lending is very important as government is focusing a lot on that, so you should prepare priority sector lending also. So I hope so, friends. This is a set of 20 question, and I hope so that you are benefited from these questions. These are the memory recalled questions, and here in this MSME question, many times the definition of micro unit or small unit is asked in the exam for 1 to 2 marks, and with that, priority sector is very important. Priority sector से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. So if you will prepare in this way, that you will focus on those area from where previous year questions are asked, definitely you are going to get through from this exam. So friends, thank you, thanks for watching this video. I hope so you are benefited from this video, and if you are benefited from this video, please like the video and share this video with your friends who are preparing for JIB exam. And also go through the previous videos which are already uploaded on our YouTube channel, so that you can have a revision of the all the things. So, and subscribe to our channel if you have not subscribed. Thank you, friends. Thanks for watching. Have a nice day and best of luck for your preparation.